ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु 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 जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कोटान कोटान शुकराना गुर करतार दा। कोटान कोटान धन्यवाद ज़ूम दे राही जुड़ बैठी गुरु दी प्यारी परम सत्कारयोग साध संगत जी का इलाही बख्शिश सदका असा रल मिल के गुरमत विचारा दे राही गुरमत विचारधारा गुर इतिहास गुर शब्द विचार आपस ਵਿੱਚ ਸਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ पूरे मनुख मात्र ਨੂੰ मिलिया है। पर यह बख्शिश का एहसास केवल गुरु के सन्मुख होके गुरु की शरण विच आके इस दात का एहसास हो सकता है। वो दात है साडे केस, ये वो दात है जिहड़ी करतार की बख्शिश है, जिहड़ा उस करतार दे रहमत सदका पूरी जीव श्रेणी ਨੂੰ मिलिया है। पर मनुखा जीवन विच बहुत तौर ते मनुख इस दात तो वेसला होके इसकी कटवट विच पिया होया है। खैर जेड़े मत जिस तरह की फिलोसफी रखते ने, जिस तरह की सोच रखते ने, वो उन्होंने मुबारक। पर गुरु का सिख गुरु दे राह दा पांदी वही है जेड़ा इस दात की इस बख्शिश ਨੂੰ समझे जे ते एदी बेदबी तो बचे। क्योंकि एदा कतल एदी बेदबी इस दात की बेदबी गुरु नालों पिठ करन दे बराबर है, गुरु दे हुक्म की उल्लंघना है। अज ये विषा जिस तरह की हुण तक जिन्ने भी लेख आपां रल मिल के आपस विच सांझे कीते, पिता ज्ञानी सुरजीत सिंह जी की लिखता दे राही असीं समझण दा यतन कीता। अज उसी कड़ी विच ये लेख भी ये जिहड़ी सांझ बनाउण दा चल जा रहा है, ये भी उन्हां दी ही लिखत है। लेसन नंबर 225 दे राही आपस विच असीं सांझा करना है कि सिख दे जीवन विच केसां दी की महत्ता है। अज बहुतान तौर पर सुनने को मिलता है कि सिख होने लई केसां दी लोड़ है। मैं नितनेमी हाँ, मैं पाठ भी करता हाँ, मैं गुरुद्वारे भी जाना हाँ, साध संगत विच भी बहना वा, मैं मन नूं भी चंगा रखिया है, मैं गुरु दी बाणी भी पढ़दा वा, सुनदा वा, ते मैं गुरु दा सिख होया ही ना। जे केस नहीं ते की होया। होर ते होर ये भी कहा जाता है जदों साडी पनीरी इंज दा कोई गुनाह करती है ते उसनूं जस्टिफाई करने लिए असीं बहुतां तौर ते ये गल्लां भी करते हैं कि जदों बख्शिश होएगी आपे सौची आ जाएगी। ठीक है, बख्शिश होनी है, पर बख्शिश जड़ी गल परसों भी गल हुई
ਵੀਰ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਕਰਾਏ ਭਾਨੇ ਉਜੜ ਭਾਨੇ ਰਹਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਖੈਰ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਝੀ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਉਚੇਰੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਕੀ ਹੈ, ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਚੇਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇੰਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਹਰਿਆ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿਣੀ ਬਾਰੇ। ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜੀਵਨ ਜਾਤ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਭਾਵ ਸਾਧਨਾ, ਕਮਾਈ, ਪਕਿਆਈ, ਘਾੜਤ, ਇਹ ਸਭ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਰਹਿਣੀ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਤੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੱਖ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੱਖ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੇਨ ਪੱਖ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ, ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਔਰ ਸੂਰਤ ਉਸਨੇ ਬਖਸ਼ੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਚੁੱਕ। ਇਲਾਹੀ ਤੇ ਰੱਬੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਟੇਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਬਾਣੀ ਜਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੱਲਦਾ।
मैं तो कहांगा सिख दा जीवन ही रजा और रहमत दे विच है, दो कंडियां विच है। जिस तरह समुंदर दे दो कंडे ने, दो कंडियां दे विच सिख दा जीवन है। गुरबाणी तो प्रगट जीवन जाच, गुरबाणी आदर्शा ते चलन वाली जुगत ते जिस तरह दी सूरत भाव संपूर्ण के साथ तारी वाली जिहड़ी सूरत मनुख नूं बख्शी है करतार ने, उसकी संभाल। ये दो पक्ष ने जिहड़े बहुत अहम ने, और इहदा तुरा है हुक्म रजाई चलना। टेक है हुक्म रजाई चलना। हुक्म विच रजा विच तदी चलिया जा सकता है जदों क्यों किंतु ना होए। जे विच क्यों किंतु है दी अगर असीं कट वट करदे हां या कोई चेंजेस करदे हां ते हुक्म विच किस तरह हुक्म विच खिड़े मत्थे रहने वाली गल ते ना हुई। फिर तो क्यों किंतु वाली गल हो गई कि रब नूं नहीं पता, करतार नूं नहीं पता असीं किवें सोहणे लगांगे और असीं अपनी कटवट कर रहे हां, असीं अपने वल्लों मैनिपुलेट कर रहे हां, ते फिर साडी सियाणप वड्डी हो गई। ते फिर हुक्मे अंदर सब को वाली गुरु की प्रेरणा ते साडे ते असर नहीं कीता ना, सानू तो समझ ही नहीं आई, असीं अवेसले हो गए। फिर जिन्ने मर्जी मत्थे टेकते रहिए। क्योंकि सिख धर्म गुरबानी विचारधारा तो प्रगट मानवी कदरां कीमतां नाल भरपूर धर्म है। ये कुछ लोगों का धर्म नहीं, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म। ये कुछ लोगों का धर्म नहीं, समुची मानवता का मूल है। रब्बी इलाही सच ते आद काल का धर्म है। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर का नाम जप। नाम की है ओदी रजा विच रहना, सेवा की है ओदी रजा विच रहना। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੱਥੋਂ सेवा कर ਲਈਏ, ਧਨ ਦੀ सेवा कर ਲਈਏ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਨੇ ਆ, सब व्यर्थ ने। क्योंकि मैं तो रहेगी नहीं ना जिथे हुक्म आ गए। हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म अच्छे बुझे ता होम में। फिर होम में कितने रह गई? जिहड़ी ये साजिशां हो रही ने, जिहड़ी ये ताकतां पिछे लगियां हुई ने, जिहड़े ताबड़ तोड़ हमले हो रहे ने, आज सिख संगतां काफी भुलेखियां विच पई हुई है। गुरबानी ज्ञान गुरबानी जीवन की घाट का नतीजा ही है कि गुरु दी संगतां दे विचकार तेजी नाल भरम भुलेखे वधदे जा रहे हैं, शंके सवाल वधदे जा रहे हैं, ये सगों पैदा किए जा रहे हैं। संगतां कई ऐसे गुरु नूं प्यार करने वाले भी पुछदे ने, कित्थे लिखिया गुरु ग्रंथ साहिब जी विच सिख ने केस जरूर रखने ने, सिख ने केसाधारी होना है। कई सवाल इस तरह के साडे रोज असीं संगत विच जाने, कई ऐसे सवाल आते। पर जबकि सच्चाई अगर दर्शन करिए गुरु महाराज के, ध्यान नाल दर्शन करिए, बेअंत वारी गुरु महाराज ने केसा की गल की है, बेअंत वारी बार बार सानू समझाया, भगतां दे राही सिखां दे राही गुरु साहिबान ने अपने पावन बचना राही सानू बार बार प्रेरणा दी, पूरी तरह दृढ़ कराया सगों। क्योंकि यह विषय केवल सिख परिवार में जन्म लैन वाले नहीं है, पूरी मानवता का, पूरी मनुख जाति ते लागू हुंदा है, पूरे मनुख मात्र ते। क्योंकि धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का एक एक उपदेश, एक एक पावन उपदेश पूरे मनुख मात्र लिए, किसी फिरके लिए नहीं है। गुरु साहब ने गुरबानी दे राही मनुखा शरीर की रब्बी पहचान च किसी छेड़खानी की इजाजत नहीं दी, किसी को प्रवान नहीं किया। जिस तरह का शरीर मिले वो कोई कटवट नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, हुक्म है गुरु का।
जे बाणी के दर्शन करिए, बाणी विच गुरु महाराज कहते ने साबत सूरत दस्तार सिरा। हालांकि ये जिहड़ा प्रमाण है, ये गल करते ने, इत्थे गल हो रही है सुन्नत की प्रकरण, पर अज दे साडे प्रकरण जिहड़ा अज दा साडा विषय है उस ते उतरदा है, क्योंकि पावन हुक्म दा पावन एक एक वचन का भाव बड़ा डूंगा है। साबत सूरत दस्तार सिरा, मूल विषय है कि यह खुदा दे बंदे, खुदा ने जिहड़ा तैनू शरीर दिता है, मनुख होने के नाते जिन्होंने स्वरूप दिता है, उस दे विच कोई कटवड ना कर। खुदा राही तैनू इस बख्शे हुए मूल रूप नू तू ना बिगाड़। गल कीती है, गुरु साहब ने संबोधन किया मुसलमान वीरां नू, उन्हां दी सुन्नत वाली करनी नू सामने रख के, मुख रख के, इस शब्द दे राही। पर इससे समझना की है कि जदों गुरुदेव शरीरक तल तो मनुखा शरीर च मुसलमान वीरां राही कीती जा रही केवल सुन्नत वाली करनी नू शरीर दी कटवट कह रहे ने, शरीर दे नाल छेड़छाड़ भाव उस करतार दे हुक्म विच, हुक्म दी उल्लंघना कह रहे ने, हुक्म रजाई चलना वाले गुरमत सिद्धांत दे विरुद्ध दस रहे ने, तो फिर तो गल बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, जिथे सुन्नत की गल है उत्थे कटवट की गल है, ते केस जिहड़ी दात है दाते दी, उस विच असीं छेड़छाड़ किस तरह कर सकते हैं। बाणी च अनेकां वारी गुरु महाराज ने केसां की गल की, करते दी रजा विच किंतु दा हक सानू नहीं है, और जे असीं कर रहे हैं तो फिर मन दे पिछे टुरन वाले मनमुख हां, सानू समझ लेना चाहिए। फिर मैं मत्थे टेकीए, चाहे जिन्नी मर्जी सेवा निभाने दी गल्लां करिए, जिन्ने मर्जी भेख बना लईए, जिथे रजा विच नहीं है, जिथे उहदे हुक्म विच नहीं है, जिथे जीवन नू उहदे हुक्म ते नहीं तोरिया, गुरु दी सिक्ख्या ते नहीं तोरिया, सिख दा जीवन उत्थे व्यर्थ है। उत्थे सिख दा जीवन कुराहे पिया होया है, वो सिख दा जीवन ही नहीं है, क्योंकि सिख दा मतलब ही परिवारक तौर ते सिख परिवार विच जन्म लेना बख्शिश है, पर सिक्खी कमाई है, धर्म कमाई है। टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते असीं, एक कमाई की चीज है, अर्निंग की चीज है। इत्थे अपने आप ही हिदायत गुरु महाराज की स्पष्ट हो जाती है। गुरु दे सिख लई अजिही सोच भी गुरबानी ते गुरु साहिबान दे आदेशां ते उल्ट है, उन्हां नूं पिठ दिखाउण दे बराबर है। अज साडी पनीरी नूं देख लो, पंजाब पूरा कतल करता गया, मैं कतल ही बोलांगा जी, क्योंकि ताकतां लगियां ने, साजिशां पिछे चल रही हैं, जड़ा भी तेल पाया जा रहा है, इतिहास तो सुनहरे इतिहास तो दूर किया जा रहा है, बाणी तो दूर किया जा रहा है, ध्यान उत्थे है ही नहीं। एक केसा की बेदबी करने वाला भी अपने आप में सिख अखवा रहा है। मुबारक है गुरु घर जाना, मुबारक है बानी पढ़ना, मुबारक है नितनेमी होना, मुबारक है संगत विच जाना, पर प्यो नूं पुत्तर वही चंगा लगता है जिहड़ा उहदे हुक्म नूं, उहदे दुलार नूं मन्ने, केवल चापलूसी करने वाला नहीं, माफी चाहना। पहला कम हुक्म चाहना है। ठीक है, दुनियावी तौर ते असीं बहुत तरह के गुनाह करते, पर जिथे गुरु ने सानू क्लीयर इंस्ट्रक्शन दित्तियां ने, साडी रहत मर्यादा विच बचत रहत है, फिर भी अज साडी पनीरी उत्थे वल तुरदी पई है, क्योंकि किधरे ना किधरे असीं जागृत नहीं हां। गुरबानी अनुसार सफल मनुखा जीवन ਲਈ गुरबानी तो प्रगट होया सुभाव, जीवन जात, जीवन जुगत ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਰੂਪ ਦੋਵੇਂ ਜੁੜਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਦੀ
ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨੇ, ਕਰਤੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨੇ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾਤ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੀਵਨ ਕੇ ਸਤਾਰੀ ਇਸ ਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤਾਂ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਤੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਣਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਕੇਸਾਤਾਰੀ ਸਰੂਪ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਚਾਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਏ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਸੁਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡ ਟੂ ਹੈਂਡ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਣਾ ਔਰ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਤੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬਾਣਾ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਗਰ ਬਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹੋਏ, ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਦ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਰੋਮ ਨੇ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ, ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਦਾਤ, ਸਭ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ, ਇੱਕੋ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸਮਾਜਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਚਾਹੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ, ਪਰਸਨ, ਸਰਸਨ, ਹਰਸਨ, ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾ, ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ। ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਰੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ। 4 ਪੌੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤਦ ਹੀ ਮਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਚੜ ਕੇ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਮਾਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। 4 ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ, ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਰਸਨ
ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਪਰਸਨ, ਉਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਸਪਰਸ਼। केवल रुमाला साहब माफी चाहना चुप के दर्शन करने परसना नहीं है, परसना है गुरबानी रोशनी अंदर, गुरबानी चानन जीवन दे विच, जीवन दे कर्मां विच आनी चाहिए, क्योंकि गल सारी कर्मां दी, और एक कर्मां दा ही पाठ है जिहड़ा असीं साडे कर्म ही ने जिहड़े सानू गुरबानी ज्ञान गुरबानी चानन तो वेसला करके कुराहत पाके ए बजर कुराहत करन ते मजबूर कर दे, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ, ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਸਲੇ। ਇਹ ਹੈ ਪਰਸਨ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਾਣੀ ਅਭਿਆਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਸਨ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਪਰਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਣੀ ਟੱਚ ਹੀ नहीं हुई। फिर जे दर्शन ही नहीं होया, अंदर पानी गई नहीं, तो फिर अभ्यास की कीता। और पहचान है सरसर ओ विवेक बुद्ध जिस राही जीवन ने अगे सब जगह सुगंधी फैलानी, जेड़े अमला विच आनी है, जेड़े जीवन ने अपने आप उस राह ते चलना है, वो मन बच करम अपने आप उस राह ते चलणगे, वो विचार सोझी जड़ी जीवन दे अंदर आएगी, उसनू सरसर वो है सरसर। मनुखा जीवन का गुरबाणी की आज्ञा के आदेशा अनुसार कड़िया जाना, यह है सत्संग ते फिर हरसन। यह है नानक भगता सदा विरस हरसन पाव जिथे जीवन विच ओदी घाड़त हो गई, मत बुद्ध मन घड़िया गया ते आपे जीवन विच खेड़ा आ गया, वो है हरसन। फिर चार पौड़ियां जिथे मनुख चढ़ गया गुरु की कृपा सदका, अगे रंग रंगी करतारी, फिर करतार के रंग विच रंगिया गया। एक फैसला गुरु महाराज ने बहुत प्यारा सा बार बार दिता है, और ता ही है जद असी पहला स्टेप हुक्म अनुसार चलिए, अपने आप को ओदे अगे सरेंडर करोगे, 100% सरेंडर, सलाम जवाब दो, वो कम नहीं होना चाहिए, क्यों किंतु नहीं। जे रलगढ़ हो कटवट हो रही है तो फिर वो सलाम भी है तो जवाब भी, फिर वो क्यों किंतु भी। जे रंगना है करतार नाल ते चार पौड़ियां बाणी अभ्यास दे राही बाणी में जीवन विच उतार के मन बच कर्मा नो उस राह ते चला के, यही है गुरु दा कृपा दा पात्र बनना, यही है सरम खंड ते करम खंड। जाके जीवन ने अपने असली मनोरथ में पाना है, सचखंड जिन्हें कहते हैं, कोई पूरी नहीं, यही सचियार बनना है, ये है सचखंड। रंग रंगी रंगी करता जी गुरु महाराज ने बाणी विच बाणी जपी दर्शन करना ना, तिथे सीतो सीता महिमा माए ताके रूप न कथने जाए, यही गल उत्थे भी समझाइए। जेड़ा ओदे नाल ओत पोत हो गया, सीता आ गया, वो फिर ताके रूप न कथने जाए, उस अपने आप उस अवस्था ते पहुंच गया, उत्थे अपने आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन ते पहुंच गया। खैर ये समझण दी लोड़ है कि गुरु महाराज ने सानू बार बार ये गल्लां समझाइयां, रोज बाणी दर्शन करने। जीवन का दूजा स्थान है जीवन का स्वरूप, मनुखी जीवन का स्वरूप, मनुखी शक्ल, क्योंकि असं मनुखे जीवन की गल कर रहे हैं, तो और किसी श्रेणी विच, किसी जीव श्रेणी विच ये अर्थता नहीं है, केवल बंदे नूं कहा जाता बंदा बन जा, और किसी जगह ते नहीं है। जिथे जिथे के जिस तरह का स्वरूप, जिस तरह का रूप दिता है मालक ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई उल्लंघना नहीं किसी जीव विच, ना स्वभाव विच, ना केवल मनुख ही है जिहड़ा स्वभाव विच भी हेरा फेरी करता है ते स्वरूप विच भी। चूहा अपना कुतरन का स्वभाव नहीं छड्डदा, बकरी कदी मांस नहीं खांदी,
शेर कदी घाह नहीं खांदा, शेर अपने स्वरूप ਨੂੰ नहीं बदलता, बकरी अपने स्वरूप ਨੂੰ नहीं बदलती। कई पूरी श्रेणी ਕਿਹੜੀ भी जीव श्रेणी ਨੂੰ देख ਲਈਏ, किसी भी जीव श्रेणी, केवल एक मनुख ही है जिन्हों सारी सहूलतां मिलियां सिकदारी लई, पर एक खुद पानीहार बन के बैठ गया क्योंकि ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, अपनी असली वजूद तो अवेसला हो गया, अपने जीवन की असली मकसद तो अवेसला हो गया। बानी विच बार बार केसा की गल आती, जिथे जिथे गुरु महाराज ने अकाल उस्तत की, काल पुरख की उस्तत की, उत्थे केसो की गल की। केसो 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 कुकी, अनेकों गुणवाचक बेअंत गुणवाचक नाम आए ने। केसो केसो कुकीए, केसव केसवा केसवे, कई जगह ते अलग अलग था पर बेअंत नाम आए ने। भक्तां दी बानी विच, सिखां दी बानी विच समा इजाजत नहीं दे रहा, अनेका प्रमाण ने। पिंड पतल मेरी केसो क्रिया, सच नाम करतार, अनेका बचन ने गुरु महाराज दे। केसा तारी मनुखा स्वरूप बारे कई गल्लां की, मनुखा स्वरूप की प्रौढ़ता की। बार बार केसा की गल की, कबीर साहब के श्लोकां के दर्शन किए सन। उथे बचन पावन बचन ऐसी, कबीर मन मुंडिया नहीं, केस मुंडाए काए, जो किछ किया सो मन किया मुंडा मुंड अजाए। क्यों थे केसा की गल आई? भक्तां दी बानी विच, गुरु पातशाह दी अपनी पावन बचना विच, तेरे बंके लोए दंत रिसाला, सोने नक जिन लमड़े वाला। करतार दी उस्तत, जेड़े करतार नूं पछाणदे ने, जिन्हां ने करतार दे दर्शन कीते, प्रसन्न कीता, जिन्हां ने करतार नूं 100% सरेंडर करता, ओहदी उस्तत विच ओहनूं लम्मे वाला वाला दस रहे ने। मनुख ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ है जो ਉਹਨੂੰ अपने लिए महसूस होता है, जो ਉਹਨੂੰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ महसूस होता है, ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਵਿੱਚ महसूस होता है। ਤੇ ਜੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂकि ਕਰਤਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ है, पर सबदे विच भी वस रहे, सरगुण और निर्गुण स्वरूप कुछ है। पर जिन्ने जिथे गुरु महाराज ने भगतां ने अकाल उस्तत की, उत्थे केसां दी गल की, लम्बे वाला दी गल की। ये प्रेरणा मनुख नूं है कि स्वरूप की गल करदियां होइयां, ये प्रेरणा मनुख लई है कि जिदे हुक्म विच रहना है, और खुद किस तरह का स्वरूप वाला होएगा। प्रेरणा साडे लई है, सानू दृढ़ कराया है। खूब तेरी पगड़ी, मीठे तेरे बोल, द्वारका नगरी काहे ये बकोल। पढ़दे ते बहुत बार, ये सानू बार बार साबत सूरत की गल की है। मुख सच्चे, सच दाड़ियां, सच बोले, सच कमाए, सच दाड़ियां। जे केसा दी मात्रता नहीं होंदी ते ये शब्दावली क्यों होंदी? बार बार सानू याद दिलाया, बार बार सानू याद दिलाया, से दाड़ियां सच्चियां जिन गुर चरनी लगन। ये साबत सूरत की पहचान गुरु महाराज ने दसी है। गुरबाणी छोर अनेका बचन आए ने, हुणे ध्यान रखने की लोड़ है। ये वही मिसाला दे सकता है जिहड़ा खुद केसा धारी हो। अगर इतिहास के दर्शन करिए, सानू समझ आ जाए, खुद जो केसरधारी है वही ये वचन सानू ये सेध बख्श सकता है। इस तो यह स्पष्ट होता है कि गुरबाणी चाहे भगतां दी बानी है, सिखां दी बानी है, गुरु साहिबान दी, ये सारे ते सारे केसाधारी सन, संपूर्ण केसाधारी सन। इन्हां ने उहदे हुक्म विच कदी उलंघना नहीं की। फिर जे असीं उहनां नूं फॉलो करना है ते सानू किन्ने इजाजत देती कि असीं हुक्म दी उलंघना कर ली?
किन्ने इजाजत देती कि ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ और कुछ नहीं। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ हिदायत भी है ते हुक्म भी है। अनेका प्रमाण गुरु महाराज दे समाज नहीं दे रहे, अनेका प्रमाण बार बार गुरु महाराज सानू समझाते हैं कि कोई कटवट, कोई ऐसा कटवट प्रवान नहीं, चाहे फिर वो जोगी होन, सन्यासी होन, ब्रह्मज्ञानी कहलाने वाले होन, महात्मा होन, जिन्होंने भी ये उल्लंघना की, गुरु महाराज ने प्रवान नहीं किया, कितने प्रवान नहीं किया, और ऐसे किरदार की रूढ़ता नहीं की गुरु महाराज ने कितने भी। धर्म की कसौटी ते मूलों ही उन्होंने प्रवान नहीं किया, निखेधिया। हुण जे गल करिए केसा दी और इंसानी शरीर दी, साइंटिफिकली देख लीए, मैडिकल साइंस के राही देख लीए, मनुख जदों जन्म लैंदा है केसा दा रंग काला या ब्राउन जो भी गाढ़ा रंग होता है, धीरे धीरे जिस तरह उम्र बढ़ती है वो केसा दा रंग बदलता चला जाता है। मैडिकल साइंस साइंटिस्ट ये कहते हैं वो डॉक्टर के हिसाब नाल किया जाता है कि जिहड़ी खुराक असीं लैंदे हां, जिहड़ी खुराक असीं खांदे हां, वो इन्हां अंदर एनर्जी दिंदी है, शरीर नूं दिंदी है, सारे अंगां नूं दिंदी है, केसां नूं भी वही एनर्जी दिंदी है। जे सारे शरीर विचों एनर्जी जा रही है, उस खुराक को खुराक लग रही है, तो फिर इहदा मतलब केसां नूं भी वही खुराक लग रही है। जे खुराक केसां नूं भी खुराक लग रही है, तो फिर केस अलग अंग किस तरह हो गए? फिर केस अलग अंग किस तरह हो गए? उम्र के हिसाब नाल शरीर कमजोर होंदा है, इस तरह ही केसां दा रंग पूरा ते सफेद होंदा है। जे केसां दी महत्ता केसां दा शरीर नाल कोई लेना देना नहीं सी, ते फिर वो रंग क्यों चेंज हो? उम्र के हिसाब नाल शरीर कमजोर होने नाल जो कमजोरी शरीर विच आंदी है, जे बाकी अंगां विच आंदी है, उस दी कमजोरी केसां विच भी आंदी है। भाव ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ शरीर दिमाग ਨੂੰ ठंडा रखना, क्योंकि दिमाग ने 24 घंटे चलना है, कोई मशीन 24 घंटे नहीं चलती, दिमाग सुपने भी देखता है, दिमाग कभी चुप नहीं करता, कभी ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, कभी शांत नहीं ਹੁੰਦਾ, फिर उन्हें ठंडा भी रहना। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨਸਟ੍ਰੋਕਸ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਂਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਪੁਰਤ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਸਨਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵਿਕਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਤੋਲੀਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਤਾਜ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੰਘਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਕੰਘਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕੰਘਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਘਾ ਕਛਹਿਰਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੰਘਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ। 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਪਲਸਾਨ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਚ ਕੜਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੰਘਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਹਾਂ? ਬੇਅੰਤ ਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਇਸਤਰੀ ਔਰ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ
करतार ने, करते ने, सब ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਲੰਬੇ ਕੇਸ, ਕਿਧਰੇ ਛੋਟੇ ਕੇਸ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦੀ ਮਹਿਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰਤਾਰ ਕਰਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਿਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਦਾਤ ਹੈ ਕਰਤੇ ਦੀ। जिसको ਅਸੀਂ नहीं समझ पा रहे। खैर समा ज्यादा हो गया, ज्यादा समा नहीं लवांगा, समा काफी ज्यादा हो गया। सानू ये समझना है कि दो पक्ष जीवन दे, सिख दे जीवन दे, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के दायरे विच रहने वाले सिख दे जीवन दे मुख ने। एक जीवन की संभाल, जीवन जुगत, जीवन रहे ते दूजा ओदी रजा। जीवन रहनी भी तां ही बन सकती है जो ओदी रजा विच आवांगे, और रजा विच ओदा सिख एदा जीवन की संभाल हो सकती है। जे रजा समझ आ गई, रजा बुझी गई, हुक्म बुझिया गया, ते उल्लंघना नहीं हुई। जे दुनियावी तौर ते असी ये समझने हुक्म केवल ते केवल दुनियावी जिहड़े साडी कार विहार है उहदे विच लागू हुंदा, नहीं, हुक्म हर चीज ते लागू हुंदा। साडे स्वरूप ते, साडी जीवन रहनी ते, साडे कार विहार ते, साडे कर्मां ते। पर जीवन अमला ते ही निबेड़ा है। जीवन का निबेड़ा जड़ा है अमला ते ही, कर्मा ते ही। त्याओ अज अरदास करिए गुरु महाराज बख्शिश करन, बख्शिश करन कि अपने बाणे और बाणी दे विच, अपनी रजा और रहमत के दायरे विच रहन दी समर्था, सोची समत बख्श। बाह ना छोड़ा, बाह ना छोड़ा। आओ रल मिलके अरदास करिए। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसरना चाहिए। इन्नी को अरदास गुरु महाराज जानी चर बख्शनहार। संगतां दे चरणां विच खिमा दा चक्र जी। आओ रल मिलके गुरु महाराज की प्यारी फतेह दी साझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की